Samuel David Ministries presents The Father's Touch. Holiness for sinfulness. पाप में जीवन के लिए पवित्रता, Righteousness for unrighteousness. अधार्मिकता के लिए धार्मिकता। Scaling to the cross. आइए हम उसको बदले उस क्रूस पर। And God is challenging your faith tonight. आज आपके विश्वास को चुनौती दे रहा है I परमेश्वर। am going to visit you by this time next year. अगले साल इस समय मैं आपके बीच में पधारूंगा। And when I visit you, I want to see the breaking out of my purpose and my plan in your life. और जब मैं आऊंगा तब मैं देखूंगा कि आपके जीवन में वो जो कुछ वायदे और योजनाएं दी गई थी उसको तोड़कर आप Can बाहर a man निकलते who हुए। is 100 years old bear a son? क्या एक पुरुष जो 100 साल का है वो पुत्र को जन्म Can दे a सकता child है? be born to him? क्या एक बच्चा जन्म हो सकता है उसमें से? Can a 90 years old woman bear a child? क्या 90 साल की एक स्त्री जन्म दे सकती है एक बच्चे को? He laughed to himself. वो अपने आप में हंसने लगा। But there is a voice that he is hearing. एक आवाज को वो सुन रहा है। There is still uncompleted assignment in your life, Abraham. अब्राहम, आपके जीवन में आज भी कुछ काम है जो अधूरा पड़ा है। I can't establish my covenant, my seal upon what you had until now. जो कुछ अब तक आपने प्राप्त की है उसके आधार पर मैं वाचा There नहीं is बांध सकता। something that is about to break out in your life. आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें से आप बाहर Just निकलेंगे। when you're thinking you are just about to die, I still had a greater plan in your life. जब आप सोचते हैं आप मरने ही वाले हैं तो मेरा आपकी ओर कुछ और योजनाएं निकल रही है इसी वक्त। If you can believe again now, अगर आप एक और बार विश्वास कर सकते हैं you तो will see what I will do in your life. आप देख सकते हैं क्या मैं करना चाहता हूं This आपके is जीवन में। what God began to ask this old couple when he visited. जब परमेश्वर उनके बीच में आया तो उन दोनों से परमेश्वर ने यही पूछा। Verse 9. 9वां पद। They said to him, "Where is Sarah, your wife?" उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा He said, कहाँ "They है?" are in the tent." उसने कहा वह तो तंबू में है। He said, "I will surely return to you at this time next year, and behold, Sarah, your wife, will have a son." उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। I will surely return to you, Abraham. और निश्चय अब्राहम मैं तेरे पास I आऊंगा। will surely return to you, Abraham. निश्चय अब्राहम मैं तेरे पास Say this आऊंगा। word, I will surely return to you, saith the Lord. इन शब्द को कहे निश्चय तेरे पास फिर से आऊंगा यहोवा To कहता है। somebody and say this word. अपने साथी की ओर मुड़कर आप कहें God says, I will surely return to you. यहोवा कहता है निश्चय मैं फिर से आऊंगा। Dear friend, मेरे प्रिय for मित्रों, you to accomplish the plans and purposes of God, you don't need anybody to visit you. God's visitation is enough to bring those plans out. परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए और कोई व्यक्ति की आने की जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर आपके जीवन में आए और वो आपके जीवन को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I will surely visit you by this time next year. अगले साल इस समय निश्चय मैं फिर से आपके And पास behold, आऊंगा। Sarah, your wife, will have a और son. तेरी पत्नी सारा के हाथ में एक पुत्र I जन्मेगी। declare and decree. मैं घोषणा करता हूँ एक हुक्म को। Behold, some of you who didn't get married shall be married. अब तक जो विवाह नहीं हुआ है आपका विवाह जरूर होगा। Some हालेलुया। of you who never thought you will get a job shall अब get a तक job. आपने सोचा कि आपको एक नौकरी नहीं मिलेगी, आपको एक नौकरी जरूर Some of मिलेगी। you who thought my life is ending, God is going to open new doors for you. कुछ लोग सोचे कि आपका जीवन खत्म होने वाला है, परमेश्वर आपको नया रास्ता खोलने mouth वाला and say, है। अपने मुंह को खोल कर कहे By this time next year, God shall surely return to me. अगले साल इस समय परमेश्वर वापस मेरे पास आएगा। Hallelujah. हालेलुया। This time is not to give you a miracle, but to see your miracle. आज ये समय अद्भुत देखने का नहीं मगर देने का समय है। To tell you there is unfinished assignment in your life. अपने आप से कहे कि अधूरा काम अभी भी बाकी है। And he is saying, वो इस प्रकार कहता he है। didn't consider the opinions of Abraham and Sarah. अब्राहम और सारा की बातों के आधार पर उसने कार्य को नहीं किया। Okay, Serena,
Serena, I will come next year. He didn't हाँ say those words. ठीक है, अगले साल मैं आऊं, इस प्रकार नहीं पूछा। Serena, you'll get married, you'll get, okay. No, this is just, he just said it, and you better shut your mouth and believe. क्या विवाह करोगे? इस प्रकार है क्या? इस प्रकार है क्या? Hallelujah! कि आप केवल He विश्वास just said it. करेगा। You better shut your mouth and believe. उसने कहा केवल आप मुंह बंद करके विश्वास करें I उसे। am visiting you to tell you there is मैं unfinished. अभी आया हूं आपको कहने के लिए अभी भी अधूरा काम आपके जीवन में बाकी है। So by this time next year, I am coming to see what will come out of your life. अगले वर्ष इस समय मैं आऊंगा, मैं देखना चाहूंगा क्या आपके जीवन से बाहर आई है। Abraham is the most clever, अब बहुत ही चतुर था अब्राहम। cleverest person, I think, cleverest husband. मैं सोचता हूं एक चतुर पति के तौर पर वही सबसे पहला था। How do I know? If you read here, verse 11, अगर 11वें पद को हम पढ़ते हैं तो in verse 10, the second part it says, and Sarah was listening at the tent door which was behind him. 10 के आखिरी में कहता है सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे Sarah was past childbearing. और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, Sarah laughed to herself, इसलिए सारा अपने आप में हंसने लगी, saying, after I became old, shall I have pleasure, my Lord being also old. और कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? God visited Abraham in chapter 17, 17वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के पास आया था, that he would bless Sarah, वो सारा को आशों से भरेगा, that there were kings that need to come out of her womb. और उसके गर्भ से कई ऐसे राजा बाहर आना अभी भी बाकी है। I don't know about you. Everybody who agree with me, place your hand upon yourself and say, kings are about to come out of my life. मैं नहीं जानता कितने लोग सहमत होते हैं, मगर जो सहमत होते अपने ऊपर हाथ रखकर उस प्रकार कहे कि राजा मेरे अंदर से अभी भी आना बाकी Say है। with me. Nation shall come out of me. मेरे अंदर से देश बाहर आएंगे। I'm talking about the sons you already have. मैं उनके बारे में कह रहा हूं जिनको अभी बच्चे I'm हैं। already talking about the children that God has already blessed you with. मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो परमेश्वर आपको बच्चों से भर Say दिया with है। me, king shall come out of me. राजा मेरे अंदर से आएंगे, Prince and princesses shall come out of me. राजकुमार और राजकुमारियां मेरे अंदर से आएंगी। Nations that were mightier than my enemies shall come out of me. मेरे दुश्मन से भी महान शक्तिशाली देश मेरे अंदर से निकलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God told Abraham, king shall come out of your परमेश्वर ने अब्राहम से कहा आपके पत्नी के अंदर से राजा बाहर body. He आएगा। didn't tell it to Sarah. उसने सारा से नहीं कहा। Why? क्यों? Sarah's faith stood still. सारा का विश्वास स्थापित हो चुका था। The moment your faith stops, the plans that God had for you stops. जिस क्षण आपका विश्वास रुक जाता है परमेश्वर की योजना आपके ऊपर की उसी वक्त Your बंद हो जाती journey है। stops the moment you stop believing. जब आप विश्वास करना बंद करते हैं उसी समय आपकी यात्रा बंद हो They जाती came है। to a position of rest, and God is saying, you need to start your journey again. ऐसे स्थान में पहुंच चुका था जहां वो आराम करने के लिए तैयार था, तो परमेश्वर उसको कहता है एक बड़ी यात्रा बाकी है। Shall I bear a son? I became old. मैं बूढ़ा हो चुका हूं, क्या मैं जन्म दे सकता हूं एक बेटे को? These were her questions. ये सभी प्रश्न थे सारा के। Earlier in chapter 17, Abraham had the same old question. 17वें अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम के वही प्रश्न थे। Many times we ask God some question. कई बार हम परमेश्वर से कुछ प्रश्न करते Lord, हैं, can my life be made whole? क्या मैं अपने जीवन को उस प्रकार दे सकता हूं? Can something good come out of my life? क्या कुछ अच्छी भलाई मेरे अंदर से आ All this सकती है? while everything has been wasted. मेरी जिंदगी पूरा व्यर्थ हो चुका है, Is there a hope still? क्या कोई आशा है कि नहीं? Do I have a destiny? क्या मुझे एक लक्ष्य है? Shall I bear a son, my master also being old? मेरा स्वामी बूढ़ा है, क्या मैं उस पुत्र को जन्म दे सकती That's the हूँ? question that she said. उस प्रकार के प्रश्न सारा ने की, And God did not answer that question.
परमेश्वर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। Some questions God doesn't answer. कुछ प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर नहीं The देता है। only answer that he has is to question you back. जो केवल एक ही उत्तर था कि उसको वापस प्रश्न किया। This is how he answered the question with a question. उसी प्रकार उसने उत्तर दिया प्रश्न के साथ उस प्रश्न को। The Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? Saying, shall I indeed bear a child when I am so old? इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र को उत्पन्न कर सकती हूँ क्या? Is anything too difficult for क्या the Lord? कुछ भी ऐसी चीज है जो कठिन है हमारे यहोवा के लिए? Abraham, go and ask Sarah. अब्राहम जाकर सारा से पूछे, Ask her and inquire, is there anything hard for the Lord? उससे पूछे, जांच करे, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है क्या? Is there anything hard for the Lord? क्या ऐसा कुछ भी है जो कठिन है You यहोवा have के come लिए? with many questions today. आज कई प्रश्नों के साथ आप Shall my होंगे। husband be saved? क्या मेरा पति बचाया जाएगा? Son be saved? क्या मेरे पुत्र का उद्धार होगा? Get a wonderful life. क्या मेरे को एक अच्छा जीवन Debts मिलेगा? cancel. क्या मैं कर्ज को चुका सकता Shall हूँ? my sickness be healed? क्या मेरे रोग चंगाई Shall I होंगे? come up in life? क्या मैं वापस जीवन Shall में आ I do सकता well हूँ? in my exam? क्या मैं अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकता हूँ? Do I have a hope? क्या मुझ में एक आशा Shall I है? overcome sin, temptation, and bondage? क्या मैं पाप परीक्षा में जयवंत हो सकता हूँ? See, God is answering you by putting a question before you. परमेश्वर आपको उन प्रश्नों का उत्तर देता है आपके सामने एक प्रश्न डालकर। Is there anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Can you imagine any difficult thing which God can't do? आप विचार करें, क्या कोई कठिन चीज परमेश्वर नहीं कर सकता है क्या? Why does Sarah laugh? क्यों सारा हंसी? Sarah laughed sarcastically. सारा हंसती है जिस प्रकार की बात में वो थी। Some of you might cry. कुछ लोग हैं जो रोते हैं। Maybe God is saying the version has been changed. Maybe हो सकता है परमेश्वर कहता है कि उसमें परिवर्तन हो चुका है। David version. Why do you cry? दाऊद और शमूएल का वेद होगा, क्यों आप रो रहे हैं? Why does Sarah cry? क्यों सारा रोई? Why is Sarah disappointed? क्यों सारा निरुत्साहित है? Sarah that day started to believe the Lord again. उस दिन सारा शुरू की फिर से यहोवा पर विश्वास करने के How लिए। do I know? किस प्रकार हम जान सकते Hebrews हैं? chapter 11 and verse 11. इब्रानियों के पत्री 11 के 11 में, By faith, even Sarah herself received ability to conceive even beyond the proper time of life, since she considered him faithful who had promised. विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। Everybody says she considered. सभी लोग कहे कि उसने मान ली There were थी। many things that Sarah can consider in her life. कई ऐसी चीजें थी जो सारा अपने जीवन में मान सकती थी, कबूल कर सकती थी। She can consider her own health. अपने ही स्वास्थ्य पर वो उस प्रकार मान सकती थी। She can consider the challenge that he had physically to give birth to a son. शारीरिक तौर पर उन चुनौती को मान सकती थी कि एक पुत्र को जन्म देने के लिए जो चीजें थी। Every time she can look at Abraham and say, yeah, I married you, because of you I don't have any children. अब्राहम की ओर देखकर वो कह सकती थी कि मैं आपसे विवाह किया, इसलिए मुझे इस प्रकार एक पुत्र या There is संतान no नहीं है। pleasure getting married to you. You made me to wander to this desert for 24 years. आपके साथ विवाह करने के कारण पिछले 24 साल से कोई सुख उस प्रकार की अवस्था में We were नहीं married है। long कई साल back. पहले हमने विवाह किया। Hopeless. I can tell you, living with you for this many years, I can tell you, Abraham, you are the best hopeless person I have आप ever बहुत ही saw in my life. आशाहीन हैं। मैं कह सकता हूं आपके साथ रहने के साथ कि इतने बेहतर और उत्तम आशाहीन और कोई नहीं है। You're just unfit for family, Abraham. आप परिवार के लिए सही नहीं है अब्राहम। Sarah might have said those words. सारा इस तरह के शब्द कहे होंगे, But when God visited her that day, मगर जब परमेश्वर ने उसके पास आई उस समय, when she realized there is still unfulfilled purpose of God in her life, तब वो समझी कि आज भी मेरे साथ उस मकसद को पूरा नहीं हुआ है जो परमेश्वर when सोचा। she came to know there were kings buried inside her womb, और वो जान गई कि उसके गर्भ के अंदर राजा अभी भी दफनाए गए हैं। she gathered all her strength to believe God at 90 years age. उसने 90 साल के उम्र में सभी सामर्थ्यों को इकट्ठा किया उस बात पर विश्वास करने के लिए। Most people were quitting too soon in their life. अधिकतर लोग अपने जीवन में उसी प्रकार खत्म कर Just रहे थे। 25 years and you want to quit.
और 25 साल हो चुका है, अब बंद करना चाहूंगा मैं। 30 years they want to और quit. 30 साल में वो अपने आप को पीछे करना 40 चाहते years they हैं। want to quit. 40 साल में अपने आप को Some रोकना people चाहते हैं। start cursing their life after they cross 40. They begin to say, I became old, I became old, I became old. कुछ लोगों ने अपने आप को श्राप देने लगा जब वो 40 वर्ष को पार किए और कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया, मैं उम्र का हो गया, मैं बुजुर्ग हो Until गया। then, the old spirit didn't come. But when the moment you began to say, I became old, the 80 years old spirit will begin to come. Somebody is calling, let's go and take that man. वो बुजुर्ग आत्मा नहीं आई तब तक जब तक आपने नहीं कहा कि मैं 80 साल की हो चुकी हूं। उस प्रकार कार्य को करने लगा और आत्मा कार्य करने लगी। It start aging your skin, aging your health, aging your strength and everything that you have. जो कुछ आपके पास है, आपके स्वास्थ्य, आपकी उम्र, आपके चमड़े को वो Dear उस प्रकार friend, कार्य करने लगी। At 90 years old, 90 साल की उम्र में God is writing a new book, a new beginning, a new chapter in the life of Sarah. और सारा के जीवन में परमेश्वर एक नए अध्याय, एक नई पुस्तक, एक नए निर्णय को लिखता है। It means anybody who is 90 years old with men 100 years old and below, God wants to do new things in your life. उसका मतलब अगर आप 90 साल के हैं और पुरुष 100 साल के, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना चाहता है उसके उस उम्र में। God can do anything. Anything is possible in your life. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। Enough are the days that you cried and whined, you complained. जो शिकायत करने का दिन, रोने का दिन, वो काफी हो चुका है। अपने आप को बंद करे उससे। God wants you to consider only Him. परमेश्वर चाहता है कि आप केवल उसी को ही ध्यान दे। Sometimes you should not consider even your own family. यहां तक कभी कभी आप अपने परिवार का भी सम्मान ना करें, Because they can't believe with you. क्योंकि वो आपके साथ विश्वास नहीं कर सकते। Sometimes you shouldn't consider even your education. यहां तक कभी कभी आपके उस शिक्षा को भी आप Your सम्मान ना head करें। does not understand what God has put in your heart. आपका सिर समझ नहीं सकता क्या परमेश्वर आपके हृदय में डाला है। Sometimes you should not consider the negative balance that you have in your account. कभी कभी आप ना माने उन बात को जो खाते में जो नकारात्मक बात Sometimes है। you shouldn't consider the report that the doctor have given you. कभी कभी आप ना माने जो डॉक्टर ने जो You रिपोर्ट दिया need to है। consider and only consider the word of God and God alone. और आप केवल उसी को ही माने, केवल परमेश्वर और उसके वचन को। Sarah considered God. सारा ने उस परमेश्वर को मान लिया। Hallelujah. हालेलुया। She considered him faithful. और विश्वास योग्य करके उसने She समझी। considered the promises of God. उसने प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर का था And मान what ली। happened? तब क्या The हुआ? journey started again. और यात्रा शुरू हुआ फिर से। Ability started again, started to come to her. योग्यता उसके अंदर में आने लगी लगातार। She received ability like that of a 17 years or 17 years old young lady. और वो योग्यता को प्राप्त करने लगी जैसे एक 17 साल की लड़की के अंदर में आती है, उस सामर्थ्य को उसको पाने लगी। Process in the woman that should be there to conceive children, I believe, started to work again at 90 years old. मैं विश्वास करता हूं 90 साल के उम्र में भी जिस माता के अंदर में एक बच्चा पैदा करने का क्रिया शुरू होती है, सारा के अंदर शुरू हो The गई। fallopian tubes that were dead and dry began to blossom. और जो गर्भनाल सूख गया था, मर गया था, वो अभी खिलने लगा। One day she looked at Abraham. एक दिन उसने अब्राहम की ओर देखी। I am a child. मुझ में एक बच्चा है। I think Abraham had doubts all those 9 months every day. मैं विचार करता हूं कि अब्राहम के अंदर में वो शंका थी पूरे 9 महीने हर दिन। I just imagine like that. Will she really give birth? क्या सच में ये जन्म देगी किसी को? But I began to read the Bible. Abraham. The Bible says about Abraham, Romans chapter 4 and verse 18. अब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा। रोमियो 4 के 18 इस प्रकार कहता Considered है, not his own body, which is as good as dead. उसने अपने ही शरीर को नहीं माना जो मरे हुए के समान था। He did not consider his own body that is dead. उसने अपने ही शरीर को जो मृत था नहीं माना उस Don't प्रकार। consider the things that does not support your dream. उन बातों का आप सम्मान ना करें जो आपके स्वप्न को सही नहीं ठहराता। Don't consider the things, the people, even your own flesh, your own mind, your own eyes. Don't take interview from the things that does not support
your destiny. आप उन बातों को कभी ना माने, चाहे वो आपका शरीर होगा या आपकी आंख होगी। उस प्रकार उन बातों के उस लक्ष्य में पहुंचने का कभी सम्मान Don't नहीं make देती। friendship with people who do not believe with you. आप उनके साथ मित्रता ना बनाएं जो आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती आपको। Don't visit people that put water on your fire. कभी उनके पास ना जाएं जो आपके आग में पानी डालते हैं। God visited a lady, a young lady who is 17 years old, might be, in the land called Galilee. गलील नामक जगह पर परमेश्वर एक स्त्री के पास आती है जिसकी उम्र 17 साल की थी, And he said, you shall become pregnant by the Holy Spirit. और उसने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप गर्भवती होंगे। You are favored by God. आप परमेश्वर की अनुकूलता में हैं। That's Mother Mary. वो माता मरियम थी। And before the angel left, स्वर्गदूत जाने से पहले he said something to that lady. उसने उस स्त्री से कुछ कही, Behold, your relative Elizabeth, who is in her old age, also conceived a child. आपके ही रिश्तेदार एलिशिबा जो बुजुर्ग अवस्थे में हैं, वो भी गर्भवती हुई है। When God is writing the story of impossibility in your life, He will point you the story that has already begun in the lives of other people. जब परमेश्वर आपके असंभव कहानी को लिखना शुरू करता है तो उससे पहले परमेश्वर उस असंभव को दिखाता है जो औरों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। Pregnant people must stay with pregnant people. गर्भवती हर वक्त गर्भवतियों के साथ ही रहे। People of faith must stay with the people of faith. विश्वास के लोग के साथ ही रहे। Mary, you may not understand how you shall become pregnant. मरियम, आप समझोगे नहीं कि किस प्रकार आप गर्भवती होंगे। The Holy Spirit shall come upon you and you shall conceive a child. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी और आप But एक for पुत्र you को जनेंगे। not to get confused, go and sit with the person in whose life I already started an impossible work. आप उलझन के साथ इस प्रकार ना बैठे, मगर उसके पास जाए जिसके अंदर में परमेश्वर मैं पहले से ही कार्य शुरू कर चुका हूं। She is ahead of you 6 months. She is pregnant 6 months before. वो आपसे पहले है, 6 महीने It's पहले गर्भवती impossible हुई for है। her to conceive a child. उसके लिए असंभव था कि एक पुत्र को जन्म देना। So you should not consider all the barren women. आप उस बांझ स्त्रियों के बारे में ना सोचे हर Not वक्त। consider the lives of the people that were failure. जो पराजित हो गए उनके ही जीवन को आप You कभी should ना not देखें। consider the ones who are defeated. उनको ही ना देखें जो pराजित हो गए हर वक्त। You should read and get yourself attached with the one who were going forward, in whose life I have already started working. आप उनके साथ अपना लगन लगाए जो पहले से ही परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ गए हैं और अद्भुत कार्य मैं उनके जीवन में किया हूं, उसके ही साथ आप हर समय रहे। Because if you stay with other people, they will abort the work that have started in you. क्योंकि अगर आप अन्य लोगों के साथ रहते हैं, जो कुछ मैं शुरू किया हूं वो उससे छूट सकती है। Abraham, अब्राहम, the Greek translation says he considered and considered not. यूनानी भाषा में इस प्रकार कहती है कि उसने मान लिया और नहीं भी माना। In other words, his body began to speak to him. अन्य शब्दों में उसका शरीर उससे बातें करने You लगा। are not good enough to produce. आप अच्छे नहीं हैं कि उस प्रकार उत्पादन करने के लिए। Maybe the same thing that's happening to you. हो सकता है आपके साथ भी You उसी are प्रकार not good घट रहा enough to है। get married. आप उस प्रकार तैयार नहीं है You विवाह are के not लिए। good enough to come up in life. आप अच्छे नहीं है एक भले व्यक्ति बनने के You are लिए। not good enough to see good things in your life. आप अच्छे व्यक्ति नहीं है कि आपके जीवन में आप भले कामों को ही देखें। You are not good enough to get the favor of God. आप अच्छे नहीं है कि परमेश्वर की अनुकूलता आपके जीवन में आप देख See सकें। how sinful you are. देखें आप कितने बड़े How पापी हैं। defeated you are. आप देखें कितने पराजित हो चुके हैं। See, there is nobody to back you up. देखें आपके पीछे में सहायता के लिए कोई नहीं है आपके साथ। That's what the devil might be talking to you. वही शैतान आपसे बातें करेगा। Whom do you consider? आप किसका मानेंगे? God is looking into your eyes and asking, is there anything too hard for the Lord? परमेश्वर आपकी आंखों में देखकर पूछता है क्या प्रभु के लिए कुछ Is भी it कठिन hard है? for me to get you a job?
क्या मेरे लिए कठिन है कि आपको एक नौकरी Is दिलाऊं? it hard for me to get you married? मेरे लिए कठिन है कि आपको एक विवाह के तैयार Is it करूं? hard for me to give you children? मेरे लिए कठिन है कि आपको बच्चों को से भरूं? Is it hard for me to save your wife, your husband, your family, your children? क्या ये मेरे लिए कठिन है कि आपके पत्नी, पति, आपके परिवार को, अपने बच्चों Is को it बचाऊं? hard for me to make you a victorious person? क्या ये मेरे लिए कठिन है कि आपको एक विजय व्यक्ति बनाने में? Is it hard for me to make you the symbol of my goodness? क्या मेरे लिए कठिन है कि एक चिन्ह बनाओ जो मेरी भलाई का? If you say, Lord, it's not hard for you, अगर आप कहते हैं प्रभु आपके लिए कठिन नहीं है, God is looking to you and He is saying, now shut up and believe again. परमेश्वर आपको देखकर कहता है अब चुप हो जाए और विश्वास करें। Hallelujah. 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 Don't say, will I, 100 years old again, bear a son? अब कभी ना कहे कि मैं 100 साल का हूं, क्या मैं जन्म दे Will सकता I हूं? again, who was rejected 101 matches, will I get again married? No. क्या मेरे साथ हो सकता है कि 101 नो लड़कियों को मैं देखा था, अब क्या होगा कि Will I नहीं? again get a job? Who attempted 1,000 interviews? क्या मुझे नौकरी अब मिल सकती है? 1000 ऐसे परीक्षाओं में मैं गया था नौकरी का। Will I ever overcome sin, temptation and क्या मैं कभी भी पाप और परीक्षाओं को कभी भी जयवंत हो सकता हूं कि नहीं? believe again? विश्वास करें फिर से, Believe again. फिर से विश्वास करें। The moment you believe, जिस क्षण आप विश्वास करेंगे आपकी यात्रा शुरू होती है। की भाषा जिसे मैं नहीं जानता हूं, ऐसी जगह है जहां पर मैं कभी नहीं गया और न ही मैं वहां का हूं। ऐसी जगह से लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं। ऐसी जगह जहां पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। ऐसी ऐसी जगह पर हम यीशु मसीह का सुसमाचार टेलीविजन की सेवकाई के माध्यम से लेकर जाते हैं। जो भी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है, यीशु के नाम को पुकारता है, वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:14-15। इस टीवी प्रोग्राम के लिए आप जो अपनी भेंट भेजते हैं, उसका उपयोग सुसमाचार के प्रचार के लिए और कंगालों की मदद करने के लिए और छुटकारे के लिए किया जाता है। आप अपनी भेंटें सुसमाचार प्रचार के लिए जरूर भेजें। अपनी भेंट भेजने के लिए हमें फोन कीजिए